Hello, class. Today we will do chapter 8 Popular Beliefs and Religious Debates. So, in this chapter, we're going to learn about religious ideas that developed during the medieval period. Features of these movements, Bhakti and Sufi saints, Guru Nanak, and in the last, we'll study about the case study of Kabir. So, let's start with the chapter. It is on page number 74 of your social book. The medieval period witnessed the emergence and blending of various cultures. तो अगर हम बात करें medieval period की तो यहाँ पर काफ़ी सारा मिला जुला मिक्सचर हमें मिलेगा अलग अलग टाइप के कल्चर्स का. One important aspect of this cultural amalgamation was the rise of many new religious beliefs and ideas. The period saw the emergence of two new religious movements, the Bhakti movement and the Sufi movement. ये दो मूवमेंट ऐसे थे जिन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस किए हमारे बिलीफ्स में, रिलीजियस बिलीफ्स में, और काफ़ी फ़र्क पड़ा हमारे समाज पर इन दोनों मूवमेंट्स का. इन दोनों मूवमेंट्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. Religious thinkers reached out to the common masses and preached simpler ways to connect to God. सबसे पहले हम बात करेंगे भक्ति मूवमेंट की. The word bhakti means devotion. This term is used to describe the bond between a devotee and God. तो अगर हम बात करते हैं भक्ति की तो भक्ति का मतलब क्या होता है? एक रिश्ता किसके बीच में? एक पूजा करने वाले, एक मानने वाले इंसान के बीच में और भगवान के बीच में. The devotees worshipped God through songs and meditation. In contrast to the complex rituals of the ancient period, the Bhakti movement followed a simple approach to connect to God. अब आप बोलेंगे मैम भक्ति मूवमेंट में ऐसा क्या खास था? लोगों के पास भगवान तो पहले भी थे पूजे जाने के लिए, पर जिस तरीके से भगवान पूजे जा रहे थे, जो रिचुअल्स हुआ करते थे, जो उनके सारे के सारे कल्चर हुआ करते थे, वो लोगों की अब समझ में नहीं आने लगे थे. लोगों को दिक्कत होती थी इतने डिफ़िकल्ट रिचुअल्स फॉलो करने में, इतने महंगे रिचुअल्स फॉलो करने में. लोगों को एक बहुत सिंपल सा धर्म चाहिए था जिसको वो फॉलो कर पाएँ. Like Buddhism and Jainism, the Bhakti movement did not believe in the rigid caste system that segregated people. इसके अलावा अगर हम बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की बात करें तो ये ऐसे धर्म थे जहाँ पर धर्म के बेसिस पर लोगों को अलग अलग नहीं किया जाता था. The Bhakti movement that emerged during the medieval period in India originated in South India and spread northwards from there. The spread in popularity of the Bhakti movement can be credited to the Alvars and Nayanars that moved around one place to another spreading the idea of Bhakti. तो भक्ति मूवमेंट को पॉपुलर कराने के पीछे लोग थे अलवर्स और नायनार्स. इन्होंने ही एक जगह से दूसरी जगह प्रीचिंग की, यानी कि प्रचार किया धर्म का, भक्ति का, तभी ये एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच पाई भक्ति. Now Alvars and Nayanars ये थे कौन? Between the 7th and 9th century, the Alvars and Nayanars strengthened the Bhakti movement in South India. The Alvar and the Nayanars preached in Tamil and Telugu, which were the local languages and therefore easily understood by common people. तो Alvars और Nayanars ऐसे लोग थे जो एक जगह से दूसरी जगह धर्म का प्रचार किया करते थे. जब ये साउथ रीजन में पहुँचे, तमिल और तेलुगु में इन्होंने प्रीच किया, इन्होंने जो प्रचार किया वो तमिल और तेलुगु भाषा में किया, क्योंकि वहाँ के लोग तमिल और तेलुगु भाषा को समझ सकते थे. Some saints were Brahmins, while many also came from the lower castes. Many saints were common people who previously worked as farmers and artisans. तो अलवर्स और नायनार्स में कौन कौन थे? कुछ ब्राह्मण थे, कुछ अलग कास्ट के लोग थे. मैं इस वर्ड को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहती, आई हेट दिस वर्ड. कोई भी लोअर नहीं है, कोई भी हायर नहीं है. मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि हाँ कुछ और कास्ट के लोग थे, कुछ ब्राह्मण थे, तो कुछ फार्मर्स और आर्टिसंस थे जो ये अलवर्स नायनार्स बन जाया करते थे और प्रीचिंग किया करते थे. There were also many women saints such as the Alvar saint poet Andal and Nayanar saint Karaikal Ammaiyar. Alvar saints were the Tamil poet saints of South India. तो अलवर्स कौन थे?
अलवर वो संत थे जो कि साउथ इंडिया के पोइट्स हुआ करते थे। दे वर वैष्णवाइट्स डिवोटीज ऑफ विष्णु। तो ये वैष्णवाइट्स थे। वैष्णवाइट्स का मतलब ये विष्णु जी के भक्त थे। द नायनार्स वर भक्ति सेंट्स वर of group of 63 saints who were devoted to the Hindu god Shiva and were known as Shaivites। तो अगर हम बात करें नायनार्स की तो ये थे 63 सेंट्स का ग्रुप था, यानी इस ग्रुप में 63 संत थे और ये पूजा थे करते थे शिव जी की, यानी कि ये शिव जी के भक्त थे। तो अलवर्स किसके भक्त हो गए? ये भक्त हो गए आपके विष्णु जी के और नायनार्स भक्त हो गए आपके शिव जी के। The Alvar and Nayanar saints roamed from one place to another singing devotional songs in praise of God। तो भजन गाते हुए ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया करते थे। देखिए ये एक डिफरेंस दिया हुआ है अलवर्स और नायनार्स। देखिए मैंने आपको बता दिया अलवर्स और नायनार्स कौन थे, इसको अच्छे से और एक बार रीड कर लीजिएगा। Bhakti saints were also divided on the basis of Shagun and Nirgun। The followers of Shagun believed that God had a form, while the Nirgun followers believed that God did not exist in a form। अब भक्ति सेंट्स भी दो तरीके के हो गए, शगुन और निर्गुण। तो शगुन मानते थे कि भगवान की कोई ना कोई फॉर्म होती है, जबकि निर्गुण का कहना था नहीं, भगवान की कोई फॉर्म नहीं होती है। अब हम बात करेंगे भक्ति सेंट्स की। एज मेंशन्ड अर्लियर, भक्ति सेंट्स केम फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। Their role is significant in spreading the notion of one God and that people could connect to God through true devotion। इन लोगों का मानना था, भक्ति सेंट्स का मानना था कि भगवान एक है, एक भगवान है और उसी की भक्ति में जीवन को निकालना चाहिए। The Bhakti saints also strongly advocated the need for tolerance among humans and religions। Some important भक्ति सेंट्स have been discussed in the following sections। तो चलिए हम कुछ भक्ति सेंट्स के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आदि शंकराचार्य की। आदि शंकराचार्य वॉज बॉर्न इन कैलेडी केरला। कहाँ से पैदा हुए थे ये? केरला में इनका जन्म हुआ था। ही इज़ वन ऑफ द फर्स्ट हिंदू सेंट्स टू हैव री एग्जामिन्ड द वैदिक फिलॉसफी। एट अ वेरी यंग एज शंकराचार्य लेफ्ट होम इन सर्च ऑफ हिज गुरु। काफ़ी छोटी उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया अपने गुरु की तलाश में। इट इज़ बिलीव्ड दैट ही ट्रेवल्ड 2000 किलोमीटर्स टू द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा वेयर ही मेट हिज गुरु गोविंद पाद। शंकराचार्य स्पेंट 4 years in the service of his guru and mastered the Vedic scriptures। तो आखिरकार इनकी सफलता मिली, इनकी मेहनत की सफलता इनको मिली। 2000 किलोमीटर चलने के बाद, 2000 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद इन्हें अपने गुरु मिल गए गोविंद पाद और इन्होंने अपने 4 साल उन्हीं की सेवा में बिताए। One of the behest of his guru, Shankaracharya wrote numerous commentaries on the Vedic texts he had studied। At the age of 16, Shankaracharya completed his commentaries and then travelled across the country, preaching his knowledge of Vedic learnings। तो वेदों में महारत हासिल करने के बाद चल दिए ये पूरी कंट्री की यात्रा पर, जहाँ पर इन्होंने जो भी नॉलेज गेन की वेद पुराणों को पढ़कर उनको बांटा। He also established 4 ashrams or mutts in the 4 corners of the country and entrusted each mutt to his 4 disciples who would preach his philosophy। तो इन्होंने मठ बनाए, आश्रम बनाए और पूरी कंट्री के 4 कोनों में इन्होंने अपने मठ और आश्रम्स बनाए। द 4 मठ्स वर लोकेटेड एट द्वारका। वेस्ट में हो गए द्वारका, नॉर्थ में इन्होंने बनाया अपना मठ बद्रीनाथ में, साउथ में बनाया श्रृंगेरी में और ईस्ट में बनाया पुरी में। अब है रामानुज। रामानुज वॉज बॉर्न इन तमिलनाडु इन 1017 CE। He belonged to the Tamil Brahman family and followed the Vaishnav tradition। His teachings were simple and they treated all humans as equal। तो रामानुज एक तमिलनाडु में पैदा हुए थे, एक तमिल ब्राह्मण फैमिली में, और इनकी टीचिंग्स बहुत ही सिंपल थी, जहाँ पर उनका मानना था कि हर इंसान को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, यानी कि हर कोई बराबर है।
He believed that all human beings could attain salvation through the worship of God. सबको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, कुछ स्पेशल नहीं करना है, बस भगवान की भक्ति करनी है. Now Madhavacharya. Madhavacharya preached the Vedanta philosophy during the medieval period. He propounded the philosophy of Tattavad, which is known as Dvait or dualistic school of Hindu philosophy. He believed that the world was a reflection of God and, like Shankaracharya, established 8 मठs in different parts of India to spread his religious philosophy. इन्होंने भी मठ बनाए शंकराचार्य की तरह. शंकराचार्य ने 4 बनाए थे, इन्होंने 8 मठ की स्थापना की जिससे ये धर्म का प्रचार कर पाए. Now, Veershaivs. The Veershaivs were Shaivite saints. तो ये शिव जी के भक्त थे यानी शेवाइट्स थे. लाइक अदर भक्ति सेंट्स दे वर ऑल्सो अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, आइडल वर्शिप एंड कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स दैट हैड बीन इन प्रैक्टिस फॉर लॉन्ग. तो बाकी सब संतों की तरह इनका मानना था कि किसी भी तरीके की मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, जो रिचुअल्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होने चाहिए कि हर कोई उन्हें फॉलो ना कर पाए. The Veershaivs originated in the state of Karnataka in the 12th century and was founded by Basavan. Women were also welcomed in the Veershaiv sect. Akka Mahadevi was a female Veershaiv saint. तो इसके अंदर विमेन को भी आने की परमिशन थी, यानी जो महिलाएं हैं वो भी संत बन सकती थी. और ये अक्का महादेवी एक एग्जाम्पल हैं वीरशैव सेंट की. नाउ भक्ति सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र. ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड अ लार्ज नंबर ऑफ भक्ति सेंट्स केम अप इन महाराष्ट्र. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट भक्ति सेंट्स that came up during this period in Maharashtra included Tukaram, Sukubai, Eknath, Namdev and Jananeshwar. तो ये सारे के सारे भक्ति सेंट्स थे जो कि महाराष्ट्र में अपनी जगह बना रहे थे. ये महाराष्ट्र के थे. The Bhakti saints that belonged to Maharashtra also came from different backgrounds. Women saints were also present in Maharashtra. तो एक बैकग्राउंड यानी कि एक कास्ट के ये लोग नहीं थे, एक बैकग्राउंड के नहीं थे, एक कोई पर्टिकुलर सेक्शन नहीं था ये सोसाइटी का. हर सेक्शन से आए हुए लोग थे. भाई संत कोई भी बन सकता है, अमीर भी बन सकता है, गरीब भी बन सकता है, किसी भी कास्ट का बन सकता है. इसके अलावा महाराष्ट्र में भी कुछ महिलाएं संत देखने को मिली. द भक्ति सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र प्रीच्ड एंड sang in Marathi, which was the local language. देखो ये तो बड़ा ही अंडरस्टूड सा है कि जब महाराष्ट्र के संत हैं तो वो मराठी में ही प्रीच करेंगे. They rejected the caste system or the rituals that were advocated by the Brahminical order. They also did not renounce the world to become saints. तो एक तो ये पूरी जैसे होता था ना कि संत दीन दुनिया छोड़ देते थे, अपना घर बार छोड़ देते थे, तो ऐसा नहीं था. ये अपना घर बार नहीं छोड़ते थे, पूरी विश्व इस तरीके से नहीं छोड़ देते थे कि नहीं भाई अब हम इसका हिस्सा नहीं है, दुनिया का हिस्सा बनकर रहते थे ये. दूसरा, ये भी कास्ट सिस्टम को नहीं मानते थे. इनके हिसाब से ये जो कास्ट सिस्टम लाया गया था सोसाइटी में, ये नहीं होना चाहिए. They choose to live the life of a householder and earn a living like everyone else. These bhakti saints worshipped a form of Lord Vishnu, the Vitthal. Many other saints throughout India, such as Narsimha Mehta, Gujarat, Vallabhacharya and Daudayal, played a key role in spreading the bhakti movement. तो ऐसे बहुत सारे नाम आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे जो संत बने और जिन्होंने धर्म का प्रचार किया. एक ऐसे धर्म का प्रचार किया जिसमें आपको महंगे महंगे रिचुअल्स नहीं करने थे, आपको कास्ट सिस्टम पर लोगों को अलग नहीं करना होगा, आप एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे सोसाइटी में. आइडल वर्शिप के ज़्यादातर ये लोग खिलाफ थे. रिलीजियस डेवलपमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया. Some of the well-known saints who propagated the Bhakti movement in North India included Chaitanya, संत रामानंद, तुलसीदास, मीराबाई एंड कबीर. तो चलिए एक एक करके इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं. तो सबसे पहले रामानंद के बारे में पढ़ते हैं. ही वॉज द फर्स्ट सेंट टू प्रीच इन हिंदी. तो पहले संत थे जिन्होंने हिंदी में प्रचार किया.
ही लिव्ड इन बनारस एंड वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड राम। तो बनारस के रहने वाले थे और राम जी के भक्त थे। Ramanand's disciples belonged to different castes. His most famous disciples were Kabir and Ravidas. तो इन्हीं के disciples थे कबीर और रविदास। अब रविदास की बात कर लेते हैं कि ये कौन थे। So he was a poor cobbler who lived near बनारस। बनारस के रहने वाले थे और काफ़ी गरीब थे। He composed many hymns in praise of God. Slowly he became known for his hymns and devotion to God. पहले गरीब थे, फिर इन्होंने भक्ति करना शुरू किया। इसके बाद इन्होंने बहुत सारे इस तरीके से हाइम्स गाए जो कि भगवान की जो भजन होते हैं ना, भगवान की तारीफ में, भगवान के लिए जो गाए जाते हैं गाने, उनको भजन बोलते हैं। तो उनके लिए फिर ये जाने जाने लगे। Many people started taking his advice. According to Ravidas, God is present everywhere. तो सब लोग इनकी बातें मानने लगे, सबको इनकी एडवाइस चाहिए थी और इनका मानना था भगवान हर जगह पर है। His teachings suggested that one's karma defined an individual's status. तो कर्म अच्छे होने चाहिए तभी इंसान जीवन में कुछ अच्छा कर पाएगा। चैतन्य, अब हम बात करेंगे चैतन्य के बारे में। चैतन्य was born in Bengal. He spread the Bhakti movement in Bengal, Assam and Odisha. तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, देखिए ये इस तरीके से इम्पॉर्टेंट है कि चैतन्य ने भक्ति मूवमेंट फैलाया बंगाल में, असम में और उड़ीसा में। Since childhood, चैतन्य was a devotee of Lord Krishna. तो बचपन से ही ये कृष्ण जी के भक्त थे। His followers included Muslims as well as Hindus. He also had a large following फ्रॉम द लोअर क्लासेस। तो हिंदू भी थे इनके साथ, मुस्लिम्स भी थे इनके डिसिपल्स, और इसके अलावा जो और कास्ट के लोग थे, देखो मुझे ये वर्ड बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बट और जो क्लासेस के भी लोग थे उन्होंने भी इनका भक्ति मूवमेंट में साथ दिया। द प्रैक्टिस ऑफ कीर्तन where people would gather and sing devotional songs was started by चैतन्य। तो जो आज कीर्तन चलते हैं ना, आपने देखा होगा, फीमेल्स इसमें जाती हैं और कई सारे मेल्स भी इंटरेस्टेड होते हैं। कीर्तन होता है पूरे एक एरिया का, तो सब जानते हैं कीर्तन जहाँ पर गाने गाए जाते हैं भगवान के लिए। ये शुरुआत चैतन्य ने ही की थी। देन तुलसीदास, लाइक रामानंद, तुलसीदास वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड राम। तो बिल्कुल रामानंद की तरह ये भी राम जी के भक्त थे। ही बिलीव्ड दैट वन कुड कनेक्ट टू गॉड थ्रू डिवोशन एंड फेथ। तुलसीदास इज ऑल्सो नोन टू हैव रिटन द रामचरितमानस। तो रचयिता थे ये रामचरितमानस के। नाउ विमेन भक्ति सेंट्स, तो देखो विमेन कभी पीछे नहीं रही किसी भी, कोई भी फील्ड क्यों ना हो, चाहे वो स्ट्रगल हो फ्रीडम के लिए, चाहे वो भक्ति मूवमेंट हो। तो भक्ति मूवमेंट में भी ऐसे कुछ संत थी जो कि महिलाएं थीं। मैनी विमेन वर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द भक्ति मूवमेंट। They would express their devotion through songs written in praise of God. Janabai, who lived during the 14th century, was a poor saint poet from Maharashtra. तो अगर हम बात करते हैं, देखो कुछ यहाँ पे हम बात करेंगे women saints की, तो सबसे पहले नाम आता है जनाबाई का, जो कि महाराष्ट्र की पोएट थी, सेंट पोएट थी। She was a devotee of Lord Vithoba and composed a number of bhajans in his honor. The saint poets गंगसती wrote भजन्स इन गुजराती। तो गंगसती ने जो भजन लिखे वो थे उनके, वो ये भी एक पोएट थी, सेंट पोएट थी। इन्होंने जो भजन लिखे वो गुजराती में लिखे। Which were aimed at teaching her daughter-in-law पन्नाबाई। मीराबाई बिलोंग्स टू द रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़। तो देखो मीराबाई के बारे में सबने सुना होगा, ये मेवाड़ की रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी। शी वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त मानी जाती हैं। आज भी वेद पुराणों में मीराबाई के बारे में सुनने को मिल सकता है। मीरा स्पेंड मोस्ट ऑफ अ टाइम इन द डिवोशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। अपना ज़्यादातर जीवन इन्होंने कृष्ण जी की भक्ति में ही निकाल दिया। हर कृष्ण भजन्स आर फेमस टू दिस डे। तो आज भी इनके बहुत सारे भजन ऐसे हैं जो कि कृष्ण की तारीफ में इन्होंने गाए, कृष्ण के लिए गाए, और आज भी वो फेमस हैं। नाउ गुरु नानक वॉज बॉर्न इन 1469 CE इन तलवंडी। सिंस हिज चाइल्डहुड, गुरु नानक
was interested in the religious and spiritual aspect of life and therefore spent his time in the company of religious and spiritual leaders. तो बचपन से ही इन्हें ये धर्म में और ये इस टाइप की चीज़ों में बड़ा ही इंटरेस्ट था और शुरू से ही इन्होंने रिलीजियस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था. गुरु नानक रिजेक्टेड रिचुअलिज्म एंड द कास्ट सिस्टम. तो बाकी सब संतों की तरह इन्होंने भी कास्ट सिस्टम को पूरी तरीके से नकार दिया. इन्हें कास्ट सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं था. ही स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ सत्संग्स विच वर डिवोशनल गैदरिंग्स. तो आपने देखा होगा आज भी सत्संग होते हैं. ही बिलीव्ड दैट ऑल पीपल आर इक्वल. इनका मानना था कि सारे लोग बराबर हैं, ना ही कोई छोटा है ना ही कोई बड़ा है. गुरु नानक एम्फसाइज्ड ऑन द रोल ऑफ गुरु and that a guru was the right way to approach God. Guru Nanak welcomed women in his sect and allowed them to attend his sermons. तो ये चाहते थे कि महिलाएं भी इनकी गैदरिंग्स में आए, तो इन्होंने महिलाओं को परमिशन दी थी अपनी गैदरिंग्स में आने की. एक्चुअली पहले क्या होता था कि कई जगह महिलाओं के आने की परमिशन नहीं होती थी, पर गुरु नानक ने अपने सत्संग कीर्तन में महिलाओं को भी आने की परमिशन दी हुई थी. He discouraged the practice of पर्दा and condemned सती. ये सती के बिल्कुल खिलाफ थे और पर्दा सिस्टम भी इन्हें पसंद नहीं था. गुरु नानक्स teachings laid the foundation of Sikhism. He was the first of the 10 Sikh gurus. तो पहले जो 10 सिख गुरु हुए हैं उनमें से सबसे पहले थे गुरु नानक. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा. कितने सिख गुरु रहे हैं? 10. और उनमें सबसे पहले कौन थे? गुरु नानक. The word Sikh was derived from the Sanskrit word Shishya, meaning disciple. Guru Nanak's teachings were compiled in the Guru Granth Sahib, which is the holy book of the Sikhs. तो जैसे देखो हमारी बुक होती है रामायण महाभारत, मुस्लिम्स की होती है कुरान और क्रिश्चियंस की होती है बाइबल. इसी तरीके से जो सिख होते हैं उनकी होली बुक होती है गुरु ग्रंथ साहिब, जिसमें गुरु नानक जी ने जो भी टीचिंग्स दी हैं उनके बारे में लिखा हुआ है. Now Sufi movement. Sufism developed within the religion of Islam. The term Sufi was derived from the Arabic word Suf, which meant wool. तो सूफी जो वर्ड है वो सूफ से आया है जिसका मतलब होता है wool. However, many scholars believed that the term Sufi originated from the word Safa, मीनिंग प्योरिटी. हालांकि कुछ स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि जो सूफी वर्ड है वो सफ़ा वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है प्योरिटी यानी कि शुद्धता. Many consider Sufism to be a reform movement against the extravagance and materialism that had become a part of the Islam state. The Sufi movement originated as a mystical movement in Persia during the 8th century. तो ये शुरू हुआ पर्शिया से 8th century में. The Sufi movement believed that the grandiose ways that had become a part of the Islamic state went against the simplicity and principles of Islam. तो इनका ये मानना था कि जिस तरीके से इस्लाम को फॉलो किया जा रहा है बड़े ही भव्य तरीके से, शानदार तरीके से, उस तरीके से नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस्लाम भी सिखाता है बिल्कुल सादगी से रहना, सिंप्लिसिटी से रहना, और उनके खुद के प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि इंसान को कैसा जीवन जीना चाहिए, उनके खुद के रूल्स रेगुलेशंस हैं इस्लाम में. तो इनका मानना था कि जो अब हो रहा है इस्लाम में वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है. इसके लिए इस्लाम धर्म को और थोड़ा सा चेंज करके सूफिज्म मूवमेंट के तौर पे लाया गया. The Sufi saints were known to lead simple and austere lives with an emphasis on the self-discipline. तो जैसा कि बाकी संतों के बारे में हमने पढ़ा, बिल्कुल वैसा ही है. बहुत ही जो सूफी संत थे सिंपल सी ज़िंदगी जिया करते थे, संत की ज़िंदगी जिया करते थे. Like the saints of the Bhakti movement, the Sufi saints believed in simple rituals. बिल्कुल सिंपल रिचुअल्स फॉलो करने पर ये जोर दिया करते थे. इनका मानना था कि रिचुअल्स इतने हार्ड नहीं होने चाहिए कि लोग उन्हें फॉलो ना कर पाएं. They believed that people could connect to God through love and devotion. In Sufism, a clean and compassionate heart was an essential element to connect with God. तो बिल्कुल साफ दिल होना चाहिए, ओके, तभी हम भगवान से जुड़ पाएंगे. इनका मानना था कि हमारा दिल बिल्कुल साफ होना चाहिए, किसी तरीके का छल कपट नहीं होना चाहिए, धोखा नहीं होना चाहिए, हम किसी के संग कुछ गलत ना करें. Sufism was inspired by the teachings of the Quran. Sufi saints organized themselves into religious orders known as silsilas. Each religious order lived in a khanqa,
दैट वॉज द सेंटर ऑफ सूफी एक्टिविटीज़। तो जैसे ये लोग कीर्तन किया करते थे ना, आपने देखा था गुरु नानक कीर्तन किया करते थे और गैदरिंग किया करते थे, तो इनकी भी जो गैदरिंग हुआ करती थी वो सिलसिलाज और कानखा के रूप में हुआ करती थी। Three main silsilas or religious orders existed: Chishti, Surhawardi and Naqshbandi. Each was headed by a peer who was a teacher. तो जैसे यहाँ पर संत बोलते थे इनको, सूफिज्म में पीर बोला जाता था जो इनके टीचर होते थे। The peer had several murids that were his disciples. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते थे इनके। The following tenets formed a part of the main principles and teachings of Sufism. There is only one God and all paths lead to the same God. Therefore, it is important to be respectful of all religions. इनका मानना था कि हर धर्म की रिस्पेक्ट करो क्योंकि भगवान एक है, आप किसी भी रास्ते से जाओ भगवान आपको एक ही मिलेगा आखिरकार। All human beings are equal. सब लोग बराबर हैं। People can connect to God through love and devotion and it is not necessary to practice rituals to reach God. उनका मानना था एक बड़ा ही सादा सिंपल जीवन जियो, इंसानों से जानवरों से प्यार करो, ओके, इस और अपने आप को भगवान के लिए समर्पित कर दो। तो इस तरीके से आपको जो महंगे रिचुअल्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स हैं, वो करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल तरीके से दिल साफ रखते हुए आप भगवान को पा सकते हैं। कव्वालीज और सूफी डिवोशनल सॉन्ग्स वर वन वे टू कनेक्टिंग विद गॉड्स। जैसे कि हिंदुओं में जो हिंदू सेंट्स थे भक्ति मूवमेंट के, उनमें हुआ करते थे आपके पोएट्स, भजन, कीर्तन। इसी तरीके से सूफी मूवमेंट में जो ये पीर थे और जो इनके टीचर्स थे ये कव्वालीज गाया करते थे। ओके, कव्वालीज भी होती थी उनके भगवान के प्रेज में। नाउ सूफिज्म इन इंडिया। Sufism entered India with the Turks in the 12th century. Most of the Sufi saints that came to India belonged to the Chishti and Surhawardi silsilas. Khwaja Moinuddin Chishti played a key role in the spread of Sufism in India. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि इंडिया में सूफिज्म को फैलाने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया था ख्वाजा चिश्ती ने। People from all castes were welcome in his order. His दरगाह at अजमेर is visited by people of all religions. Even जो आज भी अजमेर में दरगाह है चिश्ती की, वहाँ सब जाते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ मुस्लिम्स जाते हैं, ऐसा भी नहीं है सिर्फ हिंदू जाते हैं, वहाँ हर कास्ट हर रिलीजन के लोग जाते हैं। अदर फेमस सूफी सेंट्स इंक्लूडेड कुतुबुद्दीन, बख्तियार काकी, बाबा फरीद एंड शेख वलीलुल्लाह. These Sufi saints belonged to the Chishti silsila. Nizamuddin Auliya was another famous Sufi saint who was the disciple of Baba Farid. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। His कानखा also provided meals to the poor people. तो इनका जो कानखा होता था उसमें ये लोग गरीब लोगों को खाना भी दिया करते थे। Sheikh Salim Chishti was a descendant of Khwaja Moinuddin Chishti. He was revered by the Mughal Emperor Akbar, who not only built the city Fatehpur Sikri near his Khanqa but also named his son Salim after him. तो शेख सलीम चिश्ती से अकबर बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे, इतने इन्फ्लुएंस थे कि उन्होंने अपने बेटे का नाम भी सलीम रखा था। A beautiful white marble muslin was built for Sheikh सलीम चिश्ती at फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी में इनकी दरगाह भी बनाई गई है। Now we have completed with the chapter. You can do the exercises. Soon you will be provided with the exercises on the WhatsApp group. You have to do the question answers by yourself. बहुत easy से हैं। What do you understand by the concept of भक्ति? भक्ति से आप क्या समझते हैं? Name the 4 मठ्स established by आदि शंकराचार्य। तो आदि शंकराचार्य ने 4 मठ्स बनाए थे इंडिया के 4 कोनों में, तो उनको आपको बताना है वो कौन से थे। Who was the disciple of बाबा फरीद? मैंने अंडरलाइन करवाया है अभी। Who played a key role in spreading the भक्ति movement in Bengal, बिहार एंड उड़ीसा? भक्ति मूवमेंट को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में किसने फैलाया? Who started the practice of सत्संग? तो सत्संग की प्रथा किसने चलाई? सत्संग किसने शुरू करवाए? ये आप कर लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत इजी से क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप लोग कर सकते हैं। नाउ वी हैव कंप्लीटेड विद चैप्टर 8। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन
Bye bye.